Okay, now moving on to glycogen. Now glycogen is similar to our amylopectin. हमारे पास glycogen कैसे similar है amylopectin से, वो बिल्कुल almost same structure होता है, ठीक है ना? We will just understand how they are similar and how they are different to one another. So first and foremost, glycogen is also made up of what? Alpha glucose monomers, ठीक है? As starch is the storage polysaccharide for plants, similarly, glycogen is the storage polysaccharide for animals. So it is present in animal and fungal cells. ठीक है? Now let's understand कि किस तरह glycogen का जो structure है that is same to amylopectin and how is it different from amylopectin. Now similarity क्या है कि it is a branch structure. ठीक है, it is branched and इसमें भी जैसे amylopectin में 1,4 और 1,6 glycosidic bonds थे, similarly glycogen also has alpha 1,4 and alpha 1,6 bonds. So it has alpha 1,4 glycosidic bond and it also has alpha 1,6 glycosidic bond. Okay, ये हमारे पास amylopectin और glycogen के बीच में similarities है. Now how is it different from amylopectin? It is basically more branched than amylopectin, यानी more branching in glycogen. ठीक है, अच्छा अब मोर ब्रांचिंग है तो ऑब्वियसली इसकी वजह से दो चीजें होंगी. एक कि इसका जो MR है is greater than amylopectin. एंड नाउ हमारे पास हमने कहा था कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा एंजाइम के पास जगह होगी अटैक करके हाइड्रोलिसिस या ब्रेक डाउन करवाने की. तो अब हमारे पास क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में कम ब्रांचिंग होती है इन कंपैरिजन टू ग्लाइकोजन, तो अगर ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांचिंग है, सो दिस मींस दैट बिकॉज अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड, it means it has more ends for attack of enzyme. So glycogen is less resistant to digestion than amylopectin. So अगर हम एक लिस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज और तो हम एक लिस्ट ऑफ वो बनाएं असेंडिंग ऑर्डर में बनाएं कि कौन सबसे लीस्ट डाइजेस्टिव है और कौन सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव है. सो टेल मी व्हाट वुड बी द सीक्वेंस बिटवीन अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. सबसे इजीली कौन डाइजेस्ट होगा और सबसे मुश्किल से कौन डाइजेस्ट होगा? आई वांट यू टू आंसर दिस, दैट व्हिच of the three is more digestive and which of the three is the least digestive? Okay, so Aldra is saying that amylose is most resistant than amylopectin and glycogen is least resistant. Very good. So हमारे पास ascending order में क्या बनेगा? That we have amylose, then we have amylopectin, and then we have glycogen. This is most resistant and this is least resistant, which means this is harder to digest, this is easier to digest. Digest कह लो या फिर you can also say hydrolysis. इसका हाइड्रोलिसिस मुश्किल होता है और इसका हाइड्रोलिसिस relatively easier होता है. Okay, so that's about it for glycogen. Now let's move on to cellulose. Now, अब तक हमने पढ़ा था about our storage polysaccharides, which were what? Which were basically starch for plants and glycogen for animals. Now, cellulose का क्या काम है? Cellulose हमारे पास होता है structural support के लिए, और हमने जब
सेल स्ट्रक्चर में सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल पढ़ी थी, तो हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास जो सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं विच आर मेकिंग अप द सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल, दे हैव अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वो हमारे पास जो प्लांट सेल है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको ब्रेक डाउन या लिसिस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और उसको एक ओवरऑल स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है सेल्यूलोज हमारे पास? सेल्यूलोज इज abundantly present and it is present in plant cell wall. It is our one of the most abundant polysaccharide or polymer of our nature. Now, cellulose is made up of beta glucose monomers. Now, because Hajra was present in our last class, Hajra, can you please tell me कि हमारे पास जब cellulose molecule बन रहा होगा, उसमें मोनोसैकेराइड्स क्या है? बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स है। तो क्या हमारे पास सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के टाइम पर 180 डिग्री रोटेशन ऑफ अल्टरनेटिव बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स होगी या नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक? Would every alternate beta glucose monomer? It will happen. Very good. And can you please give me the reason why that rotation is happening? Why is it important for the beta glucose monomer, every alternate beta glucose monomer to be rotated? What's the reason? Alpha glucose में तो हमने नहीं पढ़ा था कि rotation होनी चाहिए. So why is it so that our beta glucose monomers, each one of them after the other has to rotate? Very good. To form the bond. Now, मेरे पास ये बीटा ग्लूकोज का मोनोमर है और उसके ऊपर मैंने ऑक्सीजन बनाई है. अच्छा, नाउ टेल मी, मैंने ऑक्सीजन का जो एटम है वो अपवर्ड्स क्यों बनाया? और यू कैन से हाँ, ऑक्सीजन का एटम मेरा यहाँ पे अपवर्ड्स क्यों बनाया? कैसी कोई सिग्निफिकेंस है? सो बेसिकली हमारे पास, if I draw the structure of a beta glucose monomer for you guys, I mean structure, but that's a right reason. You are correct. The beta glucose has a hot hydroxyl group above. Now, let me show you something. This is what? This is our normal beta glucose. मैंने hydrogens नहीं बनाया, मैंने खाली 6 carbon atom, this oxygen and our OH pointing upwards, OH pointing downwards, क्योंकि ये हमारे पास carbon 1 है, ये carbon 4 है. ठीक है, I've only drawn the major things. मैंने एक major generalized structure बना दिया. Now, अगर मेरा ये बीटा ग्लूकोज 180 डिग्री फ्लिप करेगा, रोटेट करेगा, सो जो मेरा ऑक्सीजन एटम ये वाला है, जो अलग से एक सिंगल ऑक्सीजन एटम है, ये अभी अपवर्ड्स है. ठीक है, जब मैं इसको फ्लिप कर दूंगी तो मेरा ऑक्सीजन एटम यहाँ आ जाएगा ना, डाउनवर्ड्स आ जाएगा. So basically, when you will draw a structure or a representation of a cellulose molecule, तो मेरे पास ये होगा. And what is this signifying? This is signifying कि मेरे पास every alternative beta glucose monomer has been what? It has been rotated. यानी ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है, ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है. क्यों? क्योंकि हमारे पास I don't know if you attended our previous class when we discussed the formation of cellobios, but have a look over here. हमारे पास ये दो बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स हैं. ठीक है, मुझे बॉन्ड फॉर्म करना है इधर between my carbon 1 of one beta glucose and my carbon 4 of the other beta glucose. तो मेरे पास होता क्या है कि जो दोनों आपस में आमने सामने फेस कर रहे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो क्या करते हैं, वो दे कम टुगेदर, अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेता है. बट द प्रॉब्लम विद बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स इज कि हमारे पास जो कार्बन 1 है और जो कार्बन 4 है, उनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, दे आर नॉट इन लाइन विद ईच अदर.
एंड जब तक वो लाइन में नहीं होंगे, सेम प्लेन में नहीं होंगे, वो इंटरैक्ट कैसे करेंगे, वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैसे करेंगे? तो इन दोनों में से किसी एक बीटा ग्लूकोज मोनोमर को फ्लिप करना पड़ेगा 180 डिग्री वाई, ताकि हमारे पास दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन पर आ जाए और हमारे पास कॉन्डेंसेशन हो रहा है. सो दैट सेम कंसेप्ट इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर. ठीक है, that both my hydroxyl groups of the beta glucose of carbon 1 and carbon 4 should be in one single plane in one single line so that condensation reaction can occur. तो हमारे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? लेट मी ड्रॉ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल फॉर यू. दिस इज बेसिकली अ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड अगर मुझे इसको वो करना हुआ, डिस्क्राइब करना हुआ, तो जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल की, वो ये होती है लीनियर. ठीक है, लीनियर आपको नजर आ रहा है कि ये वन सिंगल लाइन है. ठीक है, लीनियर. क्या यहाँ पर कोई ब्रांचिंग है? नहीं, कोई ब्रांचिंग नहीं, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है बिल्कुल. अभी हमें कोई ब्रांचिंग इसमें नजर ही नहीं आ रही है. सो लीनियर अनब्रांच्ड chain of beta glucose monomers where every alternating beta glucose monomer is rotated by 180 degrees. सो ये हमारे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है. सेल्यूलोज मॉलिक्यूल किससे बनता है? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है एक बहुत बीटा ग्लूकोज मोनोमर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है. बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स दे कंबाइन टुगेदर. ये हमारे पास मोनोमर है बीटा ग्लूकोज का, and they combine together. And how did they combine? They combine together by forming beta 1,4. So they formed beta 1,4 glycosidic bond. और ये हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये जो चीज हमारे पास लीनियर अनब्रांच चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स फॉर्म हुई, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल्यूलोज molecule. Now, Hajra and Abiha, either one of you, can you tell me what's hydrogen bonding? Do you have any idea कि हमारे पास hydrogen bonding क्या होती है और वो कब होती है? If anybody of you can answer this question, what type of bonding is hydrogen bonding and when does hydrogen bonding occur? Because we said कि हमारे पास जो बीटा ग्लूकोज के मोनोमर हैं, ये आपस में जब कॉन्डेंसेशन अंडरगो करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. और वो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. अब ये मेरे पास मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिया. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा भी होती है. और कब होती है? बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन जब डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, when hydrogen is directly bonded to either fluorine, oxygen or nitrogen, these two are your most electronegative elements. Okay, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब है? द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स देमसेल्फ. यानी कि अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बनाऊं, दिस इज माय वाटर मॉलिक्यूल, तो मेरे पास जो मैं ये बॉन्ड शो कर रही हूँ, इस बॉन्ड में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड्स में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन नहीं हो रहे होते बिटवीन टू स्पीशीज. इंस्टेड बोथ द स्पीशीज आर शेयरिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये जो लाइन है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड?
हमारे पास जिस तरह से हम एक एटम में कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं या फ्रीली ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फिक्स्ड नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एंड दे कैन मूव इन देयर फिक्स्ड एरिया, जो भी उनका फिक्स्ड बॉन्ड है तो वो बॉन्ड के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। ठीक है, वो फिक्स ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस बैठे हुए, दे आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, it is more drawn towards oxygen. Why? It's basically like आप एक बहुत ज्यादा पावरफुल हेल्दी इंसान को खड़ा कर दो और आप एक rather slimmer इंसान को खड़ा कर दो और आप उनको एक रस्सी पकड़ा दो, एक रोप पकड़ा दो और उनका टग ऑफ वॉर कराओ, तो obviously the more healthy person would be able to pull the rope towards itself. Why? Because उसमें वो पावर होगी, वो एनर्जी होगी। Similarly, oxygen बहुत ज्यादा electronegative है। That means it has more tendency to pull electrons towards itself. तो ऑल्दो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ड्रॉन किसकी तरफ होंगे, ऑक्सीजन की तरफ होंगे, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल नेगेटिव ऑन द ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन द हाइड्रोजन आ जाता है, जिसकी वजह से अगर वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल से उस इंटरैक्ट करे तो हमारे पास, sorry, I made the same mistake again, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक वीक बॉन्डिंग होगी। सब्सिक्वेंटली ये जो ऑक्सीजन होगा वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करा होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डायपोल, अ प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, और ये कब होता है? जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास, लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। Wait a second. अच्छा, so I haven't pasted that. Just give me a second. I'll copy paste the picture for you guys. Okay. तो हमारे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही होती है? हमारे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वजह से हो रही होती है क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज में अगर हम बात करें तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या करता है? वो डायरेक्टली बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन, करेक्ट? जस्ट अ मिनट, आई स्क्रीन शेयर विद यू गाइस, सो हैव अ लुक। हमारे पास क्या हो रहा है? इफ आई कुड, ओके, ये हमारे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है। इफ यू कुड सी यहाँ पर क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। ये हमारे पास एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, then we have a glycosidic bond here, then we have a glycosidic bond here, then there is a glycosidic bond here. ये हमारे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है। क्यों हम इसको सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बुला रहे हैं? बिकॉज लुक, इट इज लीनियर, दिस होल थिंग इज लीनियर, इट इज अनब्रांच्ड, हमें कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है विथ ऑल्टरनेटिंग बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक जो चीज है वो क्या है? ये हमारे पास दिस पर्टिकुलर थिंग इज वन सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज अनदर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। अब ये दो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आपस में आमने सामने आ गए, आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गए। सो इफ यू कुड नोटिस, ये हमारे पास OH है, OH में हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसके ऊपर सिग्मा नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो मेरे पास ऊपर वाली जो चेन है, ऊपर वाली चेन का जो हाइड्रोक्सिल है उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस है, और मेरे पास जो नीचे वाली चेन है उसके पास भी क्या है? पार्शियल चार्जेस है। तो if you could see, this oxygen must be having a negative charge and this hydrogen must be having a positive charge. Similarly, this hydrogen must be having a positive charge and this oxygen is having a negative charge. So ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है उसका जो OH है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो वो इससे नीचे वाले OH से आपस में अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द अबव चेन इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ द बिलो चेन। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये हमारे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है,
ये हमारे पास दूसरा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है। पॉसिबिलिटी है कि एक और मॉलिक्यूल भी हो, एक और मॉलिक्यूल भी हो। तो इनके भी जो OHs होंगे उनमें आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग, दीज आर द थ्री मेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। बट उसके बाद हमारे पास वीक बॉन्ड्स आते हैं जिसमें हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, एंड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हमारे पास वीकर बॉन्डिंग की फॉर्म होती है जिनको हम अपनी डॉटेड लाइन से शो कर रहे होते हैं। और परमानेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो होते हैं, जो कि हमारे कोवलेंट बॉन्ड हो गए, इन दिस केस हमारे पास ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हो गए, इनको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं उससे, क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन से। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स इस तरह से ज्वाइन टुगेदर करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब इस तरह की हमारे पास कोई चीज डेवलप होती है तो क्या होता है? ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा। बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये बीच बीच में आई एम ड्रॉइंग डॉटेड लाइंस और डॉटेड बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास जब बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। So what is happening? First we had a single beta glucose monomer. वो बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स कंडेंस हुए, कंडेंसेशन का रिएक्शन हुआ, कोवलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना जो कि हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। और उस लीनियर स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कहा। Then we said that when a lot of cellulose molecules interact via hydrogen bonding, what do they form? They form cellulose microfibrils. Now वो जो हमारे पास सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये जब बहुत सारे अराउंड 60-70 सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स, अराउंड 60 to 70 सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स बॉन्ड और इंटरैक्ट वाया व्हाट? वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें भी आपस में बहुत सारे जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये एक माइक्रोफिब्रिल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स 60, 70, 80 आप एक साथ ले आओ तो उनके बीच में भी क्या होगी? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और फाइनली यू विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड दिस सेल्यूलोज फाइबर्स। तो क्या क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े सेल्यूलोज के? हमारे पास बीटा ग्लूकोज मोनोमर था। फ्रॉम बीटा ग्लूकोज मोनोमर we first form a linear cellulose molecule। और यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग थी? हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। ये बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आपस में वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंटरैक्ट किए टू फॉर्म सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स। और ये बहुत सारे सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स आपस में इंटरैक्ट किए वाया मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग to form what we know as cellulose fibers। और ये जो सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं, ये हमारे पास वो मैक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास सेल वॉल फॉर्म करता है। तो इस तरह से ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ सेल्यूलोज फाइबर्स हैं और ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म आवर सेल वॉल। और सेल वॉल का पूरा स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं व्हाट in your cell structure wala chapter. So is the entire concept or entire structure and function of cellulose clear to the two of you? Any questions about it?